Jai Hind and very good morning to each and every one of you. I hope everybody is fit, fine, and healthy at home and doing well. So, students, hope you all have got your information regarding your summative assessment 1, which is going to be held in the fourth week of October. Soon you will be delivered the timetable. Take care. So, after seeing your syllabus, in your organization of commerce and management, there are 7 chapters were included in your summative assessment. ठीक है, up to 6 we have completed. This is the last chapter of your summative assessment 1. Okay, so the name of the chapter is controlling. Chapter number 7 it would be. And what things we are going to study in this chapter. Before getting started, I just want to notify you that controlling is one of the last process of management. Okay, we have started the management process from planning, right? सबको याद होगा. After planning, then organizing. ठीक है. After organizing, we have seen staffing, right? Then staffing, we have seen directing, right? Directing is the previous chapter, and now we are going to see the controlling, which is the process which is responsible for the result of the planning. Means whatever you are planning, you have to organize it, you have to staff it properly, and then you have to organize it properly, and then after that, if you will not do a control process, whatever you have planned will be not succeeded. Okay, yes or no? क्योंकि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, yes or no, पर उस प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन है, उस एग्जीक्यूशन के बाद प्रॉपर एग्जीक्यूशन तक हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है कि जैसा हमने प्लान किया है, वॉट एवर वी हैव प्लान्ड, हमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए. कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं तो जो भी हमने प्लान किया होता है वो हम ज़रूर सक्सीड कर जाते हैं. यस और नो? उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वॉट एवर द ऑर्गेनाइजिंग इज़ प्लानिंग, राइट, it's depend on controlling that the result is going to be delivered or not. Why? Because as you can see in the introduction part, right, a business is an enterprise which is established for the achievement of specific objectives. Here specific objectives means that whatever you want apart from profit, business सिर्फ यही चाह रखता है. इसके अलावा objectives can be for the longer time or can be of shorter time. So it depend on the terms and it depends on the goal of the organization कि वो छोटे लक्ष्य भी रखती है और बड़े लक्ष्य भी रखती है. And for the achievement of such objectives there are various activities were planned. ठीक है, कि बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी प्लान होती है, और इन प्लान्ड एक्टिविटीज़ को ऑर्डर में रखने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है. बट हाउ एवर परफेक्टली और केयरफुली, ये 2 वर्ड ध्यान से देखना है आपको. ठीक है, हाउ एवर परफेक्टली एंड केयरफुली प्लानिंग में बी डन और एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में बी स्टैब्लिश. मेनी ऑब्स्टिकल में अराइज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स. यानी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्लान बनाए, ठीक है, अच्छा सोचे, कुछ अच्छी चीज़ें बनाए, जो भी वो सोच रही है वो शायद पहले किसी ने ना सोचा हो, कुछ नया लेके आए मार्केट में, लेकिन फिर भी प्लानिंग के बाद भी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लगातार कंटिन्यूसली आती रहती है. और ऐसी एक्टिविटी से निपटने के लिए हमें जिस फंक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल. ओके, बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज़ टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल and see that the work performed exactly and conformity with the plan. Means whatever we are planning, where we are confirming at the process of controlling. समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि हमने जो भी चीज़ें प्लान की वो सारी प्लानिंग सही से एग्जीक्यूट हो, हमें हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट मिले, और जो हम सोच रहे हैं, जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, वो हमें ज़रूर मिले. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा निर्भर करती है सबसे आखिरी प्रोसेस में, जो कि है कंट्रोलिंग. ठीक है, आई होप सबको पता चला है कि भाई कंट्रोलिंग प्रोसेस है क्या.
ठीक है। इसके बाद आगे जो बचता है इंट्रोडक्शन, उसमें आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है स्पेशली, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस। मीन्स हम इसमें ये देख रहे हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने आप को, ना सिर्फ हायर इंडिविजुअल्स बल्कि मिडिल और लोअर जो ग्रुप्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, they are also being checked, their performance is also being evaluated to find out the deviations and remove it. What are the deviations? Deviation means if any person or any department is not going according to plan. ठीक है, हम देख सकते हैं कि शायद अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जैसा उस डिपार्टमेंट को बताया जा रहा है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहा गया है कि आपको 21 डेट, कोई भी एक डेट तक आपको ये प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, उसके कुछ रीजंस होंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, उन प्रॉब्लम्स को जानना, उन डेविएशंस को देखना। ठीक है, डेविएशंस मीन्स कि वो ऑब्स्टिकल्स जो आपको आपके काम से दूर ले जा रही है, आपके टारगेट से दूर ले जा रही है, और ऐसी ऑब्स्टिकल, ऐसे डेविएशन को ढूंढ कर तुरंत ही रिमूव करना, ताकि करेक्टिव मेजर्स लेना, ताकि आपने जो भी प्लान किया था, ठीक है, एट ये स्टार्टिंग जो भी आपने प्लान किया था वो चीज़ आप प्रॉपरली अचीव कर पाएँ। सो बच्चों, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस अगर कोई है तो वो आती है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में आज हम क्या देखने वाले हैं? एज वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, होप वी ऑल हैव अंडरस्टूड अ लिटिल बिट ऑफ controlling. But if you have not understood yet, then this paragraph is very much important for you. Okay, so controlling generally it is a order of management which is planning as in first step, because generally planning is considered as the first step of organization because it is done as in the initial process. ठीक है, तो अगर पहली स्टेप प्लानिंग है, अगर हम मानते हैं कि भाई प्लानिंग ने जो भी हमने प्लान किया है, तो कंट्रोलिंग को हम उसकी लास्ट स्टेप मानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यह बात मैंने कही कि प्लानिंग से शुरुआत होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव की, तो कंट्रोलिंग पे वो चीज़ एंड हो जाती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम जो भी चीज़ें प्लान करते हैं, ठीक है, जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो भी हमने अथॉरिटी दी, वो सही समय पे सही लोगों तक पहुंच जाए, ये चीज़ डिसाइड करने वाली एक ही प्रोसेस है मैनेजमेंट में, दैट इज़ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब है प्रोग्रेस चेक करना, टास्क चेक करना, उन्हें कंपेयर करना स्टैंडर्ड्स के साथ। स्टैंडर्ड्स के साथ मीन्स कि अगर आप क्रिकेट में देखते हैं कि हर बैट्समैन का अपना एक एवरेज रेट होता है। ठीक है, एवरेज रेट मीन्स कि हर मैच में वो कितने रन बनाता है, दैट इज़ एन एवरेज स्कोर। तो उसका जो करंट मैच चल रहा है, यानी अगर वो एक मैच खेल रहा है, तो उस मैच से उसका करंट जो स्कोर है, उस करंट स्कोर को कंपेयर करेंगे किससे? एवरेज स्कोर से, यानी वो हमेशा कितना बनाता है, और कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि भाई उसने अच्छा खेला है उस दिन या फिर नहीं। अगर वो अपने एवरेज से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब यही है कि ही हैज़ डन वेरी वेल डन। बट अगर उससे कम है तो ये बात होती है कि भाई उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तभी तो हम उसके स्टैंडर्ड्स चेक कर रहे हैं, राइट, ताकि वो और बेहतर कर सकें। So the function of controllers is also get an information such as and deviations and remove them and correct them. तो ये एक बहुत ही अच्छी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यही डेफिनेशन अच्छे से समझनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। ठीक है, कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिलती है जानकारी, किस चीज़ की? डेविएशंस की, यानी आपने जो तय किया था, जो आपने डिसाइड किया था, जो रोड आपने सोच रखी है कि हमें इसी रास्ते से जाना है, लेकिन अचानक कोई एक ऐसा मोड़ आ जाता है, एक ऐसा डेविएशन आ जाता है जहाँ आप गलती से मुड़ जाते हो, तो हो सकता है शायद आप अपनी मंजिल से दूर चले जाओ, या सुनो भटक जाओ। तो ऐसे हमारी संस्था ना भटके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने तय किया है, जो हमने डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग ही जाए। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? जी, कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण की। नियंत्रण होगा तो हम ऐसे डेविएशंस को ना सिर्फ फाइंड कर पाएंगे, बल्कि इन्हें सही समय पर रिमूव करेंगे, और जो भी करेक्ट मेजर्स होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है,
आई होप बच्चों आप लोगों को कंट्रोलिंग का मीनिंग समझ में आ गया है। फिर भी अगर अब भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर आपको रहा है कंट्रोलिंग से रिगार्डिंग, तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से देख लेना है, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो बच्चों, एज दिस पैराग्राफ शोज दैट इन ऑर्डर for the sense of controlling means to decide the activities to be carried out. Means first of all what we are doing, we were deciding that what activities we are going to carry out. ठीक है, अब यहाँ पर मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, फिर उसे इवैल्यूएट करना, राइट। और इवैल्यूएट करने के साथ साथ जो ये इसकी आखिरी प्रोसेस होती है वो होती है मेजर करना, करेक्टिव मेजर्स लेना कि जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने प्लान किया है उसको कैसे वापस से हम जनरल सेम सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। इसलिए करेक्टिव मेजर्स लेना और ये कंफर्म करना कि चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रही है। सो कंफर्मेटिव विथ प्लान इज़ ऑल्सो अ नीड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग डिटरमाइन करती है ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, याद रखना प्लीज़, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्लानिंग डिसाइड करती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव बट कंट्रोल मेक्स देम इफेक्टिव। मतलब आप भले ही चुनते प्लानिंग में लक्ष्य को हैं, लेकिन कंट्रोल ही ये डिसाइड करता है कि आपको वो लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीन्स प्लानिंग डिसाइड ऑब्जेक्टिव बट कंट्रोलिंग अचीव्स द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एक अच्छी लाइन है, आपको याद रखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आ रही है बच्चों डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। हेनरी फ्योल द्वारा दी गई डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अनुसार कंट्रोल ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग्स टू द प्लान। तो कंट्रोल मतलब क्या है? कंट्रोल तभी किया जाता है या फिर तभी मुमकिन है, पॉसिबल है, जब हमें प्लान पता हो कि वॉट एवर द प्लान इज़, क्योंकि उसी प्लान से हम कंपेयर करते जाएंगे कि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जा रही है या नहीं आ रही। और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं जाती, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, द ऑर्डर्स विच हैव बीन गिवन, द प्रिंसिपल विच हैव बीन लेड डाउन, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स in order to may be rectified and prevented for recurring. Means in the last two lines, what did the Henry Fayol wants to say or state over here? कि whatever you have planned or whatever you want to achieve, you have to see that the things are going according to them, according to you or not. And if it is not going according to you, then rectify the mistakes. What is rectification of errors? English में पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स में भी पढ़ता है। रेक्टिफाई मीन्स ढूंढना। क्या ढूंढना? मिस्टेक्स को ढूंढना, प्रॉब्लम्स को ढूंढना कि हमारे प्लान में आखिर दिक्कत क्या आ रही है, ऑर्गेनाइजिंग में आ रही है, स्टाफिंग में आ रही है, कि डायरेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एंड आफ्टर डिसाइडिंग दैट प्रॉब्लम, रेक्टिफाइंग दैट प्रॉब्लम, वी हैव टू प्रिवेंट इट फॉर द फ्यूचर कंसर्न फॉर बीइंग रिकरिंग। मतलब क्या हुआ कि हम भविष्य के लिए उम्मीद करेंगे कि वो दोबारा ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, ठीक है। तो यही है मीनिंग, या फिर हम कह सकें एक सही मतलब कंट्रोलिंग का, कि कंट्रोलिंग एक लास्ट स्टेप है, अचीवमेंट डिसाइड करती है। इससे प्लानिंग को कंपेयर करके पता चलता है कि आप प्लान के हिसाब से जा रहे हो या नहीं। और इसके बाद अंत में ये रेक्टिफाई करती है आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी ऑब्स्टिकल्स को, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि कैसे आप अपने आप को बेहतर और अचीवेबल बना सकते हैं, राइट। सो अच्छी डेफिनेशन है हेनरी फ्योल की, तो प्लीज़ याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर, जो आप देख सकते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स द थिंग्स, पीपल एंड फंक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो ना सिर्फ चीज़ों पर होती है बल्कि वो लोगों पर भी होती है, यहाँ तक कि फंक्शंस पर भी। फंक्शंस पर भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क भी कंट्रोल किया जाता है। यानी आप देखते होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में टाइम फिक्स्ड होता है, टारगेट फिक्स्ड होता है, क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा कि ये अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो थिंग्स की हो, पीपल्स की हो, फंक्शंस की हो, या फिर कोई भी दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड या फिर लेबर।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पीटर एफ ड्रकर की है यहाँ पर कि कंट्रोलिंग इज़ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, एफर्ट मीन्स हम क्या दे रहे हैं बिजनेस को, और रिजल्ट्स मीन्स हमें क्या चाहिए बिजनेस से। सो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि वॉट एवर यू गिव्स द बिजनेस इज़ द सेम एज वॉट एवर यू गेट्स फ्रॉम द बिजनेस। अगर आप इसमें बैलेंस बना के रखेंगे, यानी आप जितना देंगे उतना ही मिलेगा, ये बात सीधी। अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो फ्यूचर में फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो परसेंटेज है, सक्सेस परसेंटेज, वो ज़्यादा होगा। एंड दिस इज़ बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके पास क्या है और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड डेफिनेशन गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, कि भाई कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बैलेंस बना के रखती है एफर्ट्स और रिजल्ट में। इसमें आप रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, सो बच्चों, द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग to see that functions are carried out according to predetermined standards and to regulate activities। यही दो लाइन है इम्पॉर्टेंट, यही है मतलब कंट्रोलिंग का, कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ये डिसाइड करती है कि भाई चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड को मैच करके चेक करती है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टेकल आती है, कोई डिफ़िकल्टीज आती है, तो उन्हें प्रॉपर समय रहते रेगुलेट करना और उन्हें तुरंत ही दूर करना ही कंट्रोलिंग का एक मेन कंसर्न रहता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ में आ गई है अच्छी तरह। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन आज हमने देखा इस फर्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग में। इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार रीड करिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, डाउट्स निकालिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, टिल देन बी प्रिपेयर्ड फॉर समेटिव असेसमेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योरसेल्फ टू। ठीक है, चलिए अलविदा बोलने का समय आ गया। टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।